ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ہمارے ڈرامے کی، تو اس وقت میں نام لینا چاہوں گی. آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہم ٹی وی نیٹ ورک جو کہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اور ابھی ریسنٹلی ان کے اسٹائل ایوارڈ بھی ہوئے، اور ہم نے جو وہاں پہ دیکھا کپڑوں کے ساتھ جو ہوا، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جوں جوں آگے جا رہے ہیں ہم کپڑے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ کپڑے نہیں چھوٹے ہوتے جا رہے، قدریں بھی بہت چھوٹی اور ڈیلیٹ ہوتی چلی جا رہی. دیکھیں میرے ریلیجن جو ہے نا، بینگ اے مسلم، اس سے بڑی پریولیجز دوسرے کسی ریلیجن میں نہیں ہے. جو ہمارے ہاں عزت، احترام اور خواتین کو جو مقام دے دیا گیا، جو خواتین یہ جو انڈیو سے سلوگنز اور جن کے بارے میں موسٹلی تذکرہ ہوتا رہتا ہے، میرے ریلیجن میں کسی بھی مسلمان کی زندگی کا مقصود جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے مالک مجھے معاف کر کے جنتوں میں لے جانا. یہی ہے نا، اس سے بڑا سمت تو کوئی نہیں ہے. تو میری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی. اور اس سے زیادہ ڈگنیٹی اور سٹیٹس اور ایوارڈ کیا ہوگا کسی عورت کے لیے. یہ جو ہے نا، یہ جو کپڑے، یہ گیمکس ہیں، یہ مداریوں والے کام ہیں. اگر کہیں کوئی اس طرح کی ماڈلنگ کی آپ کی فوٹو شوٹ یا کچھ کہیں ریکوائر ہے تو پہنو نا ماں. یہ جو آپ یہ بناتے ہو، یہ ہمارے چینلوں کو اب کیا کہیں، وہ ڈرامہ چل رہا ہے جو ماں بہن بیٹی. ارے یار یہ کہاں ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں تو نہیں ہے سب. اچھا، ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی اس میں. کہتے ہیں ہمارے سوسائٹی کے رائٹرز اور اس کے بعد ایکٹرز پر ایک بہت بڑی سوشل رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ وہ ہماری سوسائٹی کو ایک لائن آف ایکشن دیتے ہیں یا انہیں کیٹر کرتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس وقت کے ڈرامہ انڈسٹری یا فلم انڈسٹری اس ذمہ داری کو پورا کر رہی ہے؟ دیکھو بیٹا، قلم جو ہے نا، وہ اللہ نے جس کو عطا کیا ہوتا ہے تو اس کی ایک حرمت ہے، قلم کی بھی حرمت ہے. آج امجد اسلام امجد صاحب کیوں نہیں ان کا ڈرامہ دیکھ رہے آپ؟ اصغر ندیم سید کا کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اور نور الہدیٰ شاہ کیوں نہیں لکھ رہی ہے؟ اور بے شمار لوگ کیوں نہیں لکھ رہے جن کو یہ پتا ہے کہ میرے رب نے جو میرے یہ لفظوں کا ایک چناؤ کے قابل بنایا کہ میں ان کو نٹ کر سکتا ہوں، تو اس کو اس کی حرمت سے آشنائی ہے نا. پیسہ، اکنومیکل انسینٹیو نے بربادیاں کر دی. اب ریٹنگ جو یہ ہے کہ کس نے زیادہ پیسے کما لیے، یہ ہے. کوانٹٹی جو ہے اس پہ بادر نہیں کر رہا کوئی بھی کہہ رہے اتنی ریٹنگ. تو کوالٹی، آپ کی کریڈٹ، آپ کا وہ جو پلس پوائنٹ ہے وہ آپ کی آؤٹ پٹ ہے کہ اس سے آپ نے کتنے لوگوں کو ٹیم کیا، کتنوں کو گروم کیا، کتنے اس سے احتساب کر جائیں گے اپنا. ہمارے ہاں انڈیو بھی ہو گیا. بٹ ظاہر ہے جہاں صرف مالی منفیت ہوگی تو جو سودا بک رہا ہے پھر دکاندار وہی رکھے گا نا. ٹی آر پی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اس سب سینیریو میں. راشد محمود صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جو عوام یہ ٹی آر پی کریٹ کرتے ہیں، جو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، کیا وہ قصوروار ہیں کہ وہ ایسا سٹف دیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بنانے والے اس کے ذمہ دار ہیں؟ یہ ٹی آر پی میں تو اس پہ بلیو ہی نہیں کرتا. کسی بھی ملک کا جو الیکشن ہوتا ہے جس میں ہم اپنے ملک کے صاحب اقتدار چنتے ہیں، اس سے زیادہ ٹی آر پی ہوتی ہے. یہ تو ٹرمپ نے سپر پاور نے کہہ دیا دھاندلی ہوئی. کہاں گئی وہ ٹی آر پی؟ ہمارے ملک میں یہ نئے پاکستان والی جب رجیم آئی تو آج تک وہ یہ کہتے چلے گھس بیٹھی ہے فلاں فلاں فلاں. تو یہ کچھ نہیں ہوتی. یہ سارے کے ساری چیزیں یہ افیکٹ سے ڈینائل ہوتا ہے. حقیقت اپنی جگہ موجود ہوتی ہے. میں نہیں مانتا تو حقیقت کو کیا فرق پڑے گا، وہ تو ہے اپنی جگہ موجود. یہ ہم نے اپنے وہ فرار کے چھوٹے 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 رکھے ہوئے ہیں. اچھا، اسی بات کو میں تھوڑا ایڈ اپ اور کرنا چاہوں گی کہ ہمیشہ یہ پلی لی جاتی ہے کہ عوام اس طرح کی ڈیزائرز رکھتی ہے، عوام کو یہ سٹف چاہیے. تو پھر یہاں یہ پوائنٹ بھی بڑا اسٹرانگ ہے کہ وہی عوام جو یہ سب کچھ مانگتی ہے وہ پھر علامہ خادم حسین رضوی کے جنازے پہ کیوں شرکت کرتی ہے؟ جہاں جہاں ایفیلیٹ ہوتے ہیں نا ہمارے کاموں والے لوگ، وہ پھر جس رنگ میں وہ ان کو رنگ کے پیسے دینا چاہ رہے ہیں تو وہ مان لیتے. اسٹیبل لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ڈکٹیشن انڈیو نہیں لیتے ہیں کسی کی بھی. اب مجھے کوئی کہے کہ میں یہ کر کے یہ، ارے نہیں بھائی، یہ کس بستی کس پلانٹ کی باتیں کر. تو میری خواہش تو یہی ہوگی نا کہ میں جس زمین پہ ہوں، جو میں میرے رسم و رواج، میرے روٹس، میری رہتل، میرا کلچر، میری اقدار ہے، مجھے اس میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے کہ میں
पैसों के लिए जो मुझे कहेगा कोई कर लूंगा। तो जो कर रहे हैं फिर उसका जवाब भी अल्लाह के यहाँ जाके भी वो देंगे, यहाँ तो उनसे लिया ही जा रहा है। रोज उन्हीं की खबरें छपती हैं, हमारी तो नहीं छपती, हमने किया ही नहीं ऐसा कुछ, तो हमें क्यों कहेगा कोई। बिल्कुल सही। राशिद महमूद साहब, पॉलिटिक्स हर जगह पे एग्जिस्ट करती है, चाहे वो हमारे मुल्क की क़यादत हो, चाहे वो आपका पाकिस्तान टेलीविज़न हो, कोई भी इदारा हो, या फिर हमारी होम मिनिस्ट्री हो। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त 3 साल से जो पॉलिटिक्स तब्दीली का नारा लेकर चल रही है, क्या वो ठीक लाइन ऑफ एक्शन के साथ चल रही है या उसमें कुछ तस्हीह की ज़रूरत है? देखो बेटा, जो आइडियोलॉजी, जो स्लोगन था उनका, वो पहली मर्तबा इस मुल्क में दिया गया था, उससे पहले वो स्लोगन नहीं था। उसमें अब ये 3 साल वाली बात तो आप ठीक कर रहे हो, बल्कि मैंने भी सोशल मीडिया में पिछले दिनों कहा कि खान साहब अब तो हम सचमुच घबरा गए। असल में पता क्या है, ज़बानी जमा खर्च नहीं है, जिंदगी अमल से इबारत है। मेरा रिलीजन जो है वो अमल से है, ज़बानी जमा खर्च पे नहीं। आपने जो जो दावे कर दिए शुरू में, उनमें से किसी एक पर भी फिजिकल इम्प्लीमेंट्स नहीं हुए। अब आप कह रहे हैं कि मेरे बस नहीं, ये तो बस नहीं चलता तो फिर आप छोड़ दें ना, छोड़ दे, फिर जाएं आप। अगर आपने एक मॉडल लेके आए तो फिजिकल इम्प्लीमेंट्स कर दें। ये मत सोचे कि कल को मुझे वोट देगा या नहीं कोई। आपने जो नारा, फिर रब के यहाँ पसंदीदा और मकबूल होने के लिए अमल की ज़रूरत है ना। उसमें ये है कि कानून जो है किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है, और आप एक सायादार शजर अपने आप को कंसिडर करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर उसमें उसकी छाँव में बैठने वाले वो फिर हसब नस्ल नहीं पूछते, रंगो नस्ल नहीं पूछती है छाँव, वो सबके लिए एक जैसी होती है। यहाँ एक आम बेचारा जो है वो अमरूद लेके दौड़ गया, वो पकड़ा गया तो सज़ा हो गई। आप कह रहे हैं करोड़ों खरबों अरबों, किसी को नहीं सज़ा हो रही। जो जेब कतरा था, जिसने 99 रुपए निकाले वो जेल में तड़ा हुआ, और जो 99 खरब जो आपने कहा ले गए, लेके टका तो एक वापस नहीं आया। तीसरे दिन उनकी जमानत हो जाती है सारी। ये जो कौलो फिल्म तजाद है नहीं, लेकिन वो पीछा कर रहे हैं। खान साहब कहते हैं तो करें ना, पीछा करें तो हम फिर 3 साल तो हो गए पीछा करते करते, पैसा उनका टका नहीं है, हमसे सारी चीजें मल्टीप्लाई हो गई। बिजली होती नहीं 12-12 घंटे की मेरे सबनाबाद में, और बिल जो मेरा हर बार बढ़ के आ जाता है। टमाटर पीछे रुल रहे थे 100 रुपए के 5 किलो, आज मैंने गुजरते हुए पूछे तो उसने वही टमाटर पड़े 100 रुपए किलो। कौन है ये सारे का सारा? बिजली महंगी है, गैस महंगी, दवाइयाँ, हर चीज है। तो ये सारी की सारी, देखें, जमहूरियत के फवायद सिर्फ पार्लियामेंट में जो बैठे हैं उनके लिए नहीं है। अरे मैंने वोट दिया आपको कि जाओ आप जाके बैठ के हमारी। आपने किसको वोट दिया था? मैंने खान साहब को वोट दिया था। अब क्या फीलिंग आ रही है इससे? आज मैं सोच रहा हूँ कि अब की बार जब कोई इलेक्शन में सोचूंगा किसको वोट देना। मैं अब भी उनकी आइडियोलॉजी का मद्दाओं में से, उसकी फिजिकल इम्प्लीमेंट्स नजर नहीं आ रही। इनके लिए और है, इनके लिए और, इनके लिए और है, आपके लिए और, हमारे लिए कुछ और। मैं बीइंग ए पाकिस्तानी सिटीजन, लीव इट के मैं आर्टिस्ट हूँ या मैं इस मुल्क का को बड़ा मशहूर नाम पर एक्टर हूँ, छोड़ दे, मैं पाकिस्तानी भी तो, मेरे राइट्स कहाँ हैं? अच्छा, राइट्स की बात हो रही है राशिद महमूद साहब, तो 620 रुपए का चेक आपको खान साहब के दौरे हुकूमत में मिला था ना? हाँ जी, खान साहब ही के दौर में था। और खान साहब जो बर्बादियां पहले हो रही थी इन इंस्टीट्यूशंस में, वो और मजीद बढ़ गई है। इन्होंने तो कहा था पीटीवी में आके रिफॉर्म्स लाएंगे, कुछ नहीं हुआ। अब अर्तुगरुल गाजी अब हमें मोटिवेट करेगा। 72 बरस जो हमने करोड़ों खरबों अरबों रुपया इस पाकिस्तान टेलीविजन पे हमारा लगा। अच्छा, जहाँ तक खान साहब की अगर बात की जाए तो आप लोगों के होते हुए, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के इतने बड़े एक्टर्स के होते हुए, अर्तुगरुल गाजी को जाके लाइक करना और उसके बारे में कमेंट्स करना स्पेशली, क्या ये आप लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं है? खान साहब का अपना दिल तो लगा हुआ ना, हमारा नहीं लग रहा तो उनको क्या वो ठेका हमारे साथ? उन्होंने तो हमारे शोबिज़ को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया। टेलीविजन भी हमारा तो काम भी वही था, वो बंद हो गई, प्रोडक्शंस नहीं हो रही है। रेडियो पाकिस्तान था, वहाँ जाते थे, उनके पास पैसे नहीं है, एक ड्रामा करके आते हैं तो उसके बाद हम भूल जाते हैं, अचानक 6 महीने बाद पता लगता है कि तो जहाँ जहाँ जो होना चाहिए वो वहाँ है नहीं। लेकिन ये और फिर इनको अगर करना, आप जो कहते हैं, फिर आपके यहाँ कभी कभी अब तो कंप्रोमाइजिंग
सूरत हाल लगनी शुरू करती कि ये आपस में कि कोई उसको कहते इसकी डील उसकी डील हो गई। अरे हमने आपको सबको वहाँ भेजा था कि जाओ वहाँ बैठो यार और सारे मिल के बैठ जाओ और इस लम्हे मौजूद में मिलकर ये डिसीजन कर लो कि हमें क्या किसी ने क्या 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 ऑन फुट हो गया सारा कुछ। कभी टेढ़ी पैसा नहीं वापस आया इस मुल्क में, जबानी जमा खर्च होता है। आया कोई 3 साल गुजर के 3 रुपए नहीं आप किसी से निकलवा सके, जिनको आपने कह दिया डाकू हैं चोर हैं फला फला, और आगे इस नए पाकिस्तान में क्या क्या नए गुल खिल रहे हैं वो नहीं पता आपको। राशिद महमूद साहब, इस वक्त कोरोना की चौथी लहर आ रही है और एक दफ़ा फिर से लॉकडाउन लगाने का इशारा दे दिया गया। आप क्या समझते हैं कि इज़ इट राइट फॉर एवरीथिंग और पाकिस्तानी अवाम के लिए ये कैसा है? लगे ज़रूर लगे, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, मैं उसमें उनके साथ हूँ। ये इंसानी ज़िंदगी बहुत कीमती है बेटा, और फिर उसमें जितनी प्रिकॉशंस जो SOPs या जो है वो आपकी ज़िंदगी के लिए बताए जाते हैं, उससे उनको क्या फ़ायदा। ना मास्क लगाएंगे आप, नहीं वो करेंगे तो मरो फिर जाओ, ये ज़रूरी है। और ये चौथी लहर जो है हमारा मुल्क में ये जो थोड़ी बहुत बेहूदगियों के बावजूद अल्लाह का फजल और करम रहा कि थोड़ी सी हमारे इदारों ने इस पर नज़र रखी, तो उसमें हम बहुत बचत में रहे। दुनिया में क्या क्या इसके आफ्टर इफेक्ट है। तो ये चौथी लहर जो इसको मैं सुना है जो इसकी हम देख रहे हैं दायब है, ये तो उससे भी ज़्यादा शदीद है। तो इसमें जो प्रिकॉशंस कहे जा रहे हैं वो हर सूरत हमें रखनी चाहिए। अगर ऐसी सूरत हो लगाओ लॉकडाउन, क्यों नहीं लगाना भाई, मार दे फिर आपको मरो, फिर भी चीखोगे कि हमें मर गए। तो जिस चीज़ से हम बच सकते हैं जो हमारे इख्तियार में है और हमें बताया जा रहा है उस पर अमल होना चाहिए। एक मैसेज मैं आपसे शोबिस के हवाले से, जितने लोग हमारे शोबिस के शोबे से जुड़े हुए हैं उनके हवाले से लेना चाहूँगी कि इस सारे सिनेरियो ने हमारे शोबिस के शोबे को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाउ दे विल मैनेज दिस सिचुएशन? वो तो घबरू के भी थक गए, अब तो उनसे घबराया भी नहीं जा रहा बेटा। असल में पता क्या है, हुकूमत बड़े बड़े फंड्स अनाउंस करती है जी, और वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट्स भी होते हैं उनके उस अकाउंट्स में। मैं एक सवाल करता हूँ कि किसी जो ये पैसे बांट रहा है कोई ब्यूरोक्रेट है, ये उसको क्या पता आर्टिस्ट कौन होता है, कबीर खान कौन है, फिरदौस जमाल कौन है, या जो आ जाइए। उसके लिए उस पैनल में उन बंदों को रखो कि जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारे के सारे फंड्स जो है ना वो भी सियासी एफिलिएशनों में इस्तेमाल होते हैं। पता नहीं कौन है उसका भी वो आर्टिस्ट। अरे इस मुल्क में कभी काम के बंदे ढूंढो तो 8 नहीं मिलते हैं, वहाँ 1800 बंदे चंद है, वो जो है पैसे लेके किसने किसको दे। वो जिसको जिस जगह जो होना चाहिए वो नहीं है। आप ब्यूरोक्रेट हमारे बहुत अच्छे, मुल्क उनकी वजह से चलता है, लेकिन जो कल्चर और इसके जो इदारे होते हैं उसमें वो बंदे बिठाएं जिनका उस शोबे से ताल्लुक भी हो, जिनकी एक पार्टिसिपेशन हो, वो बैठे उनके साथ और वो उनको मशावरत करके एक पैनल और फिर करें। उसमें भी ये ज़ाया हो जाते हैं पैसे। मोस्टली जो हमारे इदारे इस तरह के हैं जिनको वहाँ रखा जाता है वो अपनी शनाख्त बनाने में सारे पैसे मुका के निकल जाते हैं। अच्छा, ये एक बहुत अजीब बात है कि एक आर्टिस्ट जो कि बहुत उरूज देखता है, बहुत पैसा उसके पास आता है, लेकिन आखिरी उम्र में कसम पुर्सी का शिकार हो जाता है, हुकूमती इमदाद मांगता हुआ नजर आता है। वो भी तो जब अल्लाह रूज देता तो सबसे पहले उन बीवी को छोड़ता है जिसकी दुआओं से वो 9 शादियां करते हैं, तो भुगता फिर जोड़ा क्यों नहीं जब देता है। मुझे तो हमने चंदे भी आप लाखों करोड़ों रुपए जिंदगी में लोगों ने इन हुकूमतों से ली। मैं आपके सामने बाबा साल में पीरी में बैठा, मैंने तो नहीं कहा मुझे दो ये कोई बात दो, मेरे हाथ पैर सलाम। रब जब आपको आपका दे रहा है तो आप उसको अपनी बचत भी तो करके रखो ना, अपना घर बनाओ। कितने कुछ नहीं बनाते, नवाब साहब 3-3 4-4 शादियां कर ली, तो अभी हुकूमतों के फराइज है कि जब उसके पास नहीं तो वो मर फिर तो अपने मुस्तकबिल के लिए प्रिकॉशंस नहीं रखने। बिल्कुल, बड़ा लेविश लाखों करोड़ों रुपए आपने जिंदगी में कमाए और काम मिलना बंद हुआ तो टका नहीं आपके पास, तो ये आपकी अपनी की हुई, इसमें हुकूमतों का उनका कोई कसूर नहीं, इनका है। नहीं तो तुम्हें भी पता है जिसने, अरे यार एक जिस बीवी ने जिस बच्चों से आपकी ब्लेसिंग और सारा और आप यहाँ सबसे पहले उसे छोड़ के आप ना फिर कव्वे रहे ना हंस रहे तो छुट्टी हो गई। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी जो आपकी अपनी ज़ात से रिलेटेड है तो उनके फैसले भी आपने
خود کرنے اور عمل کرنا اس پہ، زمانی جمع خرچ نہیں ہے۔ بہت شکریہ راشد محمود صاحب آپ کا۔ جی تو ناظرین، یہ تو تھے راشد محمود صاحب، پرائڈ آف پرفارمنس ہولڈر، جنہوں نے آج ہر طرح کی گفتگو ہمارے ساتھ کی اس عید کے موقع پر، اور پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے اسپیشلی میں ایڈ کرتی چلوں کہ عمل کی سوکھی رگ میں ذرا سا خون شامل کر، عمل کی سوکھی رگ میں ذرا سا خون شامل کر، میرے ہمدم فقط باتیں بنا کر کچھ نہیں ملتا۔ ہیو اے نائس عید ڈیز، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اس، اللہ حافظ۔